Good evening, students. You're watching here, Mr. RJ Rai. Today, I'm gonna start first lesson from science. Actually, I have given you some questions from this lesson, so I have to explain you this video also. Okay, this topic. So, do watch this video and try to understood, and it may help you to understood clearly, and it may help you to complete your exercise also. So, without any delay, we can start our this lesson. Nutrition in plant. Okay, nutrition. Organism needs energy to live and grow. This energy is obtained from food. The food substance is broken down by chemical process in the body of an organism to give energy is called food. Actually, दरअसल you know very well that energy हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलता है। और ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा खाना को एनर्जी में बदलाया जाता है। दरअसल उसी को कहते हैं फूड। The process by which food is taken in by an organism and used by its body is called nutrition. और खाना खाने और उसको शरीर के अंदर इस्तेमाल करने के प्रणाली को ही कहते हैं न्यूट्रिशन। और there are two types of nutrition, one autotrophic nutrition and second one heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, green plants make their own food through a process called photosynthesis. Okay, you know very well that now green plants which can make their own food by their self, it is called autotrophic. Okay, and the second one heterotrophic. Before I start this two, autotrophic and heterotrophic, I just want to tell you, you have to understood one more thing. This is plants are mostly two types. One is green plants and second one is non-green plants. And basically you know very well green plants are closely related with autotrophic nutrition because green plants only can prepare their food by their own. That's why these plants are called autotrophic. This nutrition are called autotrophic nutrition. Okay, and there are few non-green plants which they cannot prepare their food by their own and they depend on with other green plants. This nutrition is called heterotrophic. Understood? And there are few non-green plants, you know very well that जो कि खाना नहीं बना सकते, वो दूसरे पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक. ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट इज़ closely combined with the photosynthesis, and photosynthesis you all know because you all have studied in your previous classes about photosynthesis. And but also I just want to tell you little more about photosynthesis. Okay, the term photosynthesis was coined by the Charles Red Varnes in 1893. तो फोटोसिंथेसिस को टर्म, ये नाम को सबसे पहले चार्ल्स रेड वार्नेस ने 1893 पे इसका इस्तेमाल किया था। और इसके चलते उसने ये भी बताया था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और कैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे पत्तियों में खाना बनता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो you know very well the chemical equations of photosynthesis. Now if you don't know the chemical equations of the photosynthesis, you can easily get from your book. Understood? And now I'm going to tell you the definition of photosynthesis: the process of using energy of light to convert water and carbon dioxide into sugar and oxygen is called photosynthesis. You know very well that ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के पत्तियों में क्लोरोफिल के सहारे खाना यानी कि शुगर और ऑक्सीजन बनता है, उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और देयर आर फ्यू कंडीशंस विच इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए ये 4 चीज़ का होना ज़रूरी है. अगर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कभी हो नहीं सकता. द 4 थिंग्स आर द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड फॉर क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी होता है.
इसीलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स में कभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। और सेकेंड वन, द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना भी ज़रूरी है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात में नहीं हो सकता। और अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर का होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर ये सब चारों में कोई एक चीज़ नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो क्लोरोफिल इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स इन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होता है और इसका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के रूप में होता है। ठीक है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, और लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। और पत्तियों में और एक छोटा छोटा छेद जैसा छिद्र होता है, इसे स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ओके। और उसके बाद वाटर, you know very well we can the roots absorbs water from the soil. There are many types of roots there. Okay. There are many types of roots. The root system consists of main primary rootlets and secondary roots and root hairs. तो ये root hairs के जरिए ये सोयल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वैसे वाटर को एब्जॉर्ब तक करता है, लेकिन पत्तियों तक कैसे पहुंचाता है तो ये हमें जानना ज़रूरी है। एज लाइक इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, दे आर कॉल्ड आर्टेरी और वेन। जैसे ह्यूमंस में आर्टेरी और वेन होता है, उसी प्रकार से प्लांट्स में देयर आर 2 नर्वस सिस्टम इन प्लांट्स ऑल्सो, दे आर कॉल्ड जाइलेम एंड फ्लोएम। जाइलेम मीन्स मिट्टी से, सोयल से मिनरल्स और वाटर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और पत्तियों में जो स्टार्च ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को पेड़ के हर एक अंगों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। यानी कि जाइलेम के ज़रिए वाटर मिनरल्स पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिसके चलते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और जाइलेम फ्लोएम तो बता चुका हूँ। और by this all process the final process of photosynthesis can be occur, and with this photosynthesis process plant can make their food for their self and oxygen for the environment. Okay, this is the small description about autotrophic न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिस मच फॉर टुडे। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, और द रेस्ट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो। सो कल फिर एक बार जुड़ेंगे। टिल देन गुड नाइट, बाय। डू वॉच दिस वीडियो एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।